I will invite our next speaker, Dr. Sheetal Verma ma'am, faculty from Department of Microbiology, King George's Medical University, Lucknow. Over to you, ma'am. ऑडियंस में जितने भी लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग. माय टॉपिक इज गोइंग टू बी दो चीजें हैं बेसिकली. एक है लैबोरेटरी डायग्नोसिस, एक है वैक्सीनेशन. I will be discussing little bit upon the epidemiology, clinical presentation, routes of transmission, lab diagnosis, and future aspects on which researches are being conducted. अब हमें सबको ही पता है वुहान से आउटब्रेक हुआ है. आई थिंक एवरीबडी हैज स्टेटेड दिस एंड पैंडेमिक है. सो मेनी पीपल वी हैव. Good thing is this, so many people have recovered, though the deaths all toll cannot be ignored on a large. But as of now, what we are seeing a decline in the second wave, and which is a good sign. And basically ये जो बीमारी है, this was mostly seen in the patients who were having high risk of infections, like basically who were elderly. In the second wave हमने देखा कि कुछ young adults भी हुए, but फिर भी what we had seen people with diabetes mellitus, hypertension, obesity, and pre-existing diseases have been the most patient who have been in which the mortality has been very high. So this is just to show you the timeline, कहाँ से कहाँ तक आज हम लोग पहुँच चुके हैं, कब से कब. एंड सबसे पहले हमारी डेथ टोल लास्ट आप देख सकते हैं 2019 में किस तरीके से में जहाँ से ये वुहान से स्टार्ट हुआ और हमारे यहाँ 2020 तक अप्रैल 6 तक डेथ टोल हमारे यहाँ 100 था, और अभी हम लोग बहुत आगे डेथ टोल आ चुका है. इंक्यूबेशन पीरियड भी इस वायरस का जो कि हमारा SARS-CoV-2 वायरस है, इट्स रेंजेस फ्रॉम अप टू 14 days. यूजुअली अगर पेशेंट हैज गॉट द एक्सपोजर and at least minimum of 15 to half an hour exposure to the contact, the incubator, you will see the disease within 4 to 5 days. Some patients will get severe pneumonia and ARDS, and definitely some patients, we will lose some patients and we have lost them. Symptoms are varied. किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ. So you can say a spectrum of symptoms are fever, cough, shortness of breath, muscle ache, headaches to rhinorrhea, anosmia, dysgeusia, etc., etc. So the abnormalities have already been discussed on the chest X-ray. Multifocal opacities were seen, and in the CECT we were seeing bilateral, peripheral, or ground glass opacities in the majority of patients, and the consolidation. So route of the transmission, as we if you can see, has been basically been the respiratory secretions. All over the world it has been found that this has been a respiratory secretion only. And now the theory of airborne transmission and contact with the contaminated surfaces, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सफाई रखिए. फीको ओरल ट्रांसमिशन के बारे में भी इस हफ्ते पेपर में छपा है, बट स्टिल देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड एक्चुअली एविडेंस कि वायरस कल्चर पे ग्रो किया कि नहीं किया. एंड अगेन द CDC ने भी ये भी कहा है कि शायद कंटामिनेशन से उतना नहीं फैलता है, and the stringent contamination is not that much effective, though little bit effective but not that much effective. So हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? हमें ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेने हैं, साथ में अब हमें एयरबॉर्न प्रिकॉशंस भी लेने हैं. स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, whenever they are doing the aerosol generating procedures, they have to be on a high alert. They have to wear their N95 mask, उसके ऊपर से प्रेफरेबली अ सर्जिकल मास्क. नाउ लैबोरेटरी डायग्नोसिस, आपको सभी को मेरे ख्याल से पता चल गया है कि हम लोग जो सैंपल्स लेते हैं वो सिंथेटिक फाइबर स्वैब्स होती हैं बेसिकली. एक होती है ओरोफैरिंजियल जो कि गले से लेते हैं, एक होती है नेजोफैरिंजियल जो नाक से डाल के लेते हैं. मैंने बहुत सारे टीवी पे जब शो देखती हूँ, कोई डिबेट्स एंड ऑल पे चल रहा होता है, नाक में ऐसे डाल के सैंपल निकाल रहे होते हैं, विच इज वेरी वेरी लाइक स्ट्रेंज. कोई फॉल्स नेगेटिव बढ़ेगा, ऐसे नाक में डाल के सैंपल लेने से कुछ नहीं होता. Sample this has to go horizontally into the naso. आप देख सकते हैं इसमें पीछे तक जाना है, और कुछ लोग बस नाक में ऐसे से लेके, प्लीज दैट इज लेटिंग टू लॉट ऑफ फॉल्स नेगेटिव. इससे तो अच्छा टेस्ट नहीं करिए. So what I'm trying to say, we need expert people, trained people who know how to collect the sample properly, because you are wasting so much of manpower and the testing and the money involvement in this, and then a patient gets a false negative report. That is very sad.
सो ये पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से किस तरह से हम सैंपल लेते हैं, एंड इसमें ये है कि भाई एक सैंपल से दूसरे सैंपल तक क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होना है। प्रेफरेबली तो जो भी पर्सन सैंपल ले रहा है उसको हर बार ग्लव्स चेंज करने चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं एक ने एक बार पीपी डॉन कर लिया तो सैंपल लेता रहता है, तो ऐसे पर्सन को पीछे से टिप पकड़ के ध्यान से सैंपल लेके विदाउट टचिंग दी, क्योंकि आरएनए है तो कोई गलती से भी आरएनए इधर से उधर हो गया तो रिजल्ट विल बी कंप्लीटली whatever we are not observing we will be observing. So जो sample collection है, the person has to get lot of training in this, because सैंपल कलेक्शन में गड़बड़ी हुई तो पूरा आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है, एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आल्सो गेट्स वेरी डिफिकल्ट। डॉक्टर्स के मन में भी समझ में नहीं आता है कोविड है नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्टिंग तो चलिए ऑलरेडी टेक्निकल पर्संस कर लेते हैं, वी हैव द गाइडलाइंस, बट सैंपल कलेक्शन क्योंकि बहुत ज्यादा पैंडेमिक जब फैल जाता है तो एवरीबडी इज पुट ऑन ड्यूटी फॉर द सैंपल कलेक्शन, देयर द एरर्स आर अकरिंग। सो सैंपल कलेक्शन इज डन इन दिस, इसमें सैंपल कलेक्शन करते हैं। ये एक वीटीएम वायल है, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया वायल कहते हैं हम इसको। ये आपका वायरस इसमें फ्रीज हो जा रखते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म भी रखना होता है तो फ्रीज कर सकते हैं, एंड ये आप रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। कमर्शियली कई जगह से अवेलेबल है, इसमें एंटीबायोटिक्स भी होती हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना करे। नाउ कमिंग टू दी टेस्टिंग, अभी तक जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है वो सबके लिए होती है, चाहे हम सर्विलांस कर रहे हो, चाहे हम स्क्रीनिंग कर रहे हो, चाहे हम डायग्नोसिस बनाने की पेशेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुनी लिया है बेसिकली, तो आरटीपीसीआर से सैंपलिंग होती है। सेंसिटिविटी अलग अलग, जितना ज्यादा प्राइमर्स होते हैं उतनी सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है, 70 to 90%, एंड स्पेसिफिसिटी इज वेरी हाई, 100% है। सो इसमें बेसिकली हम लोग प्राइमर्स डिटेक्ट करते हैं और सीक्वेंस उसके ऑलरेडी नोन होते हैं, फ्लोरेसेंस प्रोब जो टैग्ड होती हैं उससे ही एक कंजर्वेटिव रीजन है उस वायरस के जीनोम का, उसके आरएनए का एक कोई फिक्स पैटर्न है, उसी को हम लोग डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं पीसीआर डिटेक्शन सिस्टम पे। सो अगर आप ये देख रहे हैं, सैंपल लिया, उसको इनएक्टिवेट किया। इनएक्टिवेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हेल्थ केयर लैबोरेटरी में जो वर्कर्स हैं उनमें ये इन्फेक्शन ना फैले। उसके बाद उसका जो हमारे सैंपल जो हमने कलेक्ट किया होता है उसमें से आरएनए निकाला जाता है, उसको एक माइक्रोटाइटर जो कि पीसीआर प्लेट होती है उस पर हम लोग इसको एक्स्ट्रा वापस डालते हैं। उसके बाद वहां से हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, फिर एम्पलीफिकेशन करते हैं, एंड उसी एम्पलीफिकेशन की 35 साइकिल्स के बाद इसको डिटेक्ट किया जाता है। इसके बाद अगर आप और फर्दर रिसर्च करना चाहें तो इसमें सीक्वेंसिंग, जैसे कि आजकल बोल रहे हैं कौन सा नया वायरस आ गया, कौन सा नया वायरस आ गया, तो वो यहाँ तक प्रोसेस तो करना ही पड़ता है। उसके आगे सीक्वेंसिंग करके हम कोई भी नया वेरिएंट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो हम लोग बोल रहे हैं दैट वी कैन आइडेंटिफाई। सो दिस इज द सिस्टम, एंड जिसमें कि एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और किस तरीके से ग्राफ आता है, एज यू कैन सी अ पॉजिटिव और द नेगेटिव ग्राफ कैन बी सीन एंड वी कैन आइडेंटिफाई। तो क्या क्या टारगेट करते हैं हम लोग, कौन कौन सी जीन्स हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप, द पीसीआर इज कॉल्ड और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट ऑल्सो। सो ये क्या है, इसमें आरडीआरपी जीन, वायरस में बहुत सारे जीन्स होते हैं, जैसे कि उसका जीनोम में एक होता है आरडीआरपी, एक होता है ई जीन, एन जीन, ओआरएफ जीन, ओआरएफ 1A 1B, ये सारे जीन्स होते हैं। हम इन्हीं जीन्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, साधारण भाषा में मैं बोलना चाहूँ तो बस ये कभी कभी कुछ जीन्स क्रॉस रिएक्टिव होती हैं दूसरे कोरोना वायरस से भी, जो हमारे भारत में बहुत सालों से हैं, जो बहुत हल्की सर्दी खांसी जुकाम कराते हैं। तो इसीलिए दो तीन टारगेट्स लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो और सेंसिटिविटी अच्छी रहे। सो ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं आरडीआरपी जीन्स एंड ई एंड ओआरएफ। WHO भी रिकमेंड करती है दो, कभी कभी ई जीन एंड आरडीआरपी और ओआरएफ, एंड एन जीन कभी कभी एडिशनल कंफर्मेटरी ऐसे के लिए जहाँ डाउटफुल होता है। ट्रूनैट भी एक प्लेटफॉर्म है, हमारे को बहुत गर्व का विषय है कि वो हमारे भारत में ही डेवलप किया गया टेस्ट है। 19 मई 2020 को आईसीएमआर ने इसको अप्रूव किया। प्रिंसिपल इज सिमिलर टू दी real time PCR, and इसमें this is a fully automated chip based RT-PCR and very excellent results, and इसमें भी सैंपल सेम लेते हैं। बस इसमें हमें जो भी एक्सट्रैक्शन होता है आरएनए का वो मैनुअली नहीं करना होता है, ये मशीन के अंदर ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन होता है। सो इसको उसके साथ साथ एक CBNAT भी है हमारे पास, जीन एक्सपर्ट टेस्ट भी है, एंड दोनों का रिजल्ट काफी अच्छा है एंड बहुत जल्दी आ जाता है।
ये है, आपको देख सकते हैं, आई थिंक नॉट टेक्निकली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट दिस इज हाउ द मशीन लुक्स लाइक एंड हाउ द प्रोसेस, इट हैज लॉट ऑफ प्रोसेस। एंड यहाँ पर भी बहुत ही ध्यान देना पड़ता है लेबोरेटरी में भी कि लेबोरेटरी पर्सन कोई कंटेमिनेशन ना करे। सीरोलॉजिकल टेस्ट आजकल बहुत लोग फोन करते हैं, मैम हम एंटीबॉडी करा लें, हम ये करा लें, तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं आजकल हम लोग से। सो आप ये देख सकते हैं एंटीजेनिक टारगेट जैसे कि दो मेनली होते हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी टेस्ट करते हैं। एक होता है स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, एक होता है न्यूक्लिक कैस्पिड जो कि उसके कवरिंग में होता है फॉस्फोप्रोटीन, एस प्रोटीन या फिर एन प्रोटीन। ये हमारे को बेसिकली ये प्यूरिफाइड एंटीबॉडी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से बने होते हैं जो कि हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम आईजीएम करते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को रीसेंट इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं माना गया क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी नहीं थी। आईजीजी हम लोग करते हैं देखने के लिए किसी पेशेंट को जैसे इन्फेक्शन के बाद रिकवरी कितने दिन तक हुई, तो आईजीजी जैसे ही बनता है तो हम समझ जाते हैं पेशेंट रिकवर कर चुका है। स्टडीज अभी चल रही हैं, पता चलेगा कि आईजीजी कितने दिनों तक परसिस्ट करता है, उसके लिए कोहॉर्ट स्टडीज, लॉन्गिट्यूडनल कोहॉर्ट स्टडीज की जरूरत है। एक आईजीए भी होता है जो म्यूकोसल इम्यूनिटी को डिटेक्ट करता है। ये सारे पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग होते हैं, इजीली अवेलेबल, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं, एलाइजा भी है, केमी भी है, किसी पे भी करा जा सकता है, कई तरीके के सैंपल्स पे करा जा सकता है, सीरम में, प्लाज्मा में, होल ब्लड में, सलाइवा में, एक्सेट्रा। बहुत सारी कंपनीज अपने अलग अलग टेक्निक से इसको बना रही हैं। ये जस्ट दिखाने के लिए है कि कैसे कैसे इसको रीड और इंटरप्रेट किया जाता है। कुछ लोग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी टेस्ट करते हैं, कुछ लोग स्पाइक, आजकल जब हम क्योंकि हम कोविशील्ड देते हैं तो पेशेंट में सारी स्पाइक प्रोटीन स्पाइक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, तो हम उसमें स्पाइक एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। सो बट मोस्ट देयर लॉट ऑफ एंटीबॉडीज व्हिच कैन बी डिटेक्टेड। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट लाइक वीएनटी एंड द स्यूडोवायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। ये मैं छोड़ दे रही हूँ। कमिंग टू द रैपिड एंटीजन टेस्ट, जब कोरोना महामारी बहुत ज्यादा बढ़ी तब पीसीआर, क्योंकि बहुत ही आपको स्पेशलाइज्ड लैब्स चाहिए थी एंड आपके पास इतना मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, आई थिंक आई वुड लाइक टू शेयर से कि नहीं था, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रूव किया हमारे कंट्री में, क्योंकि ये आसानी से हो जाने वाला टेस्ट था। ये पेरिफेरी, गांव देहात कहीं पर भी ले जाया जा सकता था, आसानी से करा जा सकता था। इसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिला और ये एक चिप बेस्ड, जैसे कि आपने कभी देखा होगा प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट या एचआईवी टेस्ट, उसी की तरीके का ये रैपिड टेस्ट था। इसमें भी सैंपल ब्लड नहीं था, बस इसमें सैंपल सेम था, नेजोफेरेंजियल या नेजल, और इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम थी बट स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी थी। अगर पॉजिटिव आ जाता था तो मानते थे कि पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आता था तो हम लोग पीसीआर के लिए रिकमेंड करते थे। सो ये अभी भी यही सिमिलरली अभी भी वी आर गेटिंग दिस एंटीजन टेस्टिंग इन द यूपी एंड lot number of patients are being getting tested by the antigen and the RT-PCR both. कम से कम हमने एक दिन में 3 you can say lakh test in UP have been done daily. So ये किस तरीके का फ्लो चार्ट है। अभी जस्ट रिसेंटली इसी हफ्ते एक फेल्यूडा टेस्ट लॉन्च हुआ है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। दिस एक ये रैपिड टेस्ट है जो कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी विच इज अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होता है, उस पर अप्रूवल मिला है इसको। ये टाटा ग्रुप ने के अप्रूवल में कमर्शलाइजेशन ये लॉन्च हुआ है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने इसको भी पास कर दिया है। फेल्यूडा मीन्स FNA9 एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे है ये। तो ये एक हम लोगों क्या जैसे जीन एडिटिंग के लिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी होती है उसी पे बेस्ड है। ये रैपिड बहुत है, 45 मिनट्स में टेस्ट आ जाएगा। दिस इज अ क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट, ये टेक्नोलॉजिकल है। आपके लिए साधारण भाषा में मैं ये कहना चाहूंगी फेल्यूडा टेस्ट है which is a new we can say quantity, this is a new PCR independent. So this is just a point of care diagnostic approach which is a genomic sequence of हम पेशेंट वायरस का जीनोमिक सीक्वेंस डिटेक्ट करते हैं एंड दिस इज अ लेटरल फ्लो assay and this test is also going to hold a high like good potential in future to come. Test and cost are the only limiting factors. This is a hybrid detect assay and कई लोग मेरे से फेल्यूडा टेस्ट के बारे में आजकल पूछते भी हैं कि मैम ये क्या है। सो अभी हमारे पास अभी एक कंपैरिजन के लिए अगर आप ये टेबल देखते हैं तो फिर आपके पास RT-PCR है, ट्रूनैट है, एंटीबॉडी टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट है, फेल्यूडा टेस्ट ऑन द वे, मतलब थोड़े दिनों में यूज होने ही लगेगा। सो आप देख सकते हैं सेंसिटिविटी हर टेस्ट की अलग अलग है।
सबसे अच्छी अगर आप देखें तो स्टडीज के हिसाब से ट्रूनेट की सेंसिटिविटी हैज बीन बेस्ट एंड आरटीपीसीआर की स्पेसिफिसिटी आल्सो हैज बीन वेरी हाई फॉर ऑल द, सभी की स्पेसिफिसिटी तो अच्छी ही है। टर्न अराउंड टाइम जो कम है थोड़ा एंटीजन का और ट्रूनेट का कम है, एंड आरटीपीसीआर कहते हैं 3 से 4 घंटा, बट एक्चुअली आप हमें सब पता है इतनी वर्क ओवरलोडेड लैबोरेटरीज में 4-4 दिन भी लगे हैं सैंपल्स प्रोसेसिंग होने में। एंड बहुत लोगों के माइंड में वैक्सीन को लेके बहुत तरीके की क्वेश्चंस आते हैं एवरी डे विच वी आर आंसरिंग। बहुत लोगों को पता चल लगता है कि हर दिन वैक्सीन का क्यों चेंज हो रहे हैं प्रोटोकॉल, क्यों नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। सो बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं। कोरोना महामारी जब शुरू हुआ तो बहुत कुछ वायरसेस का ट्रीटमेंट हमारे हम लोग जो करते हैं यूजुअली सिम्टोमेटिक करते हैं, बट क्योंकि इस वायरस की वजह से बहुत लोगों की मौतें हो रही थी तो हर तरीके की ड्रग्स का क्लिनिकल ट्रायल किया गया, देखा जाए कि शायद कोई इफेक्टिव हो जाए जिससे हम लोगों को इन गुड फेथ इट वाज डन टू सेव द लाइव्स। वैक्सीन्स यूजुअली बहुत साल लेती हैं, बट द वैक्सीन्स फॉर कोविड-19 केम इन विद इन 6 months, which is a very very good sign which you can say, and vaccination drive is now being done throughout the world now. जैसे कि हमें जानते हैं हमने बहुत सारी डिजीजेस को इरेडिकेट कर दिया वर्ल्ड से, एंड अभी बहुत सारी डिजीजेस आर ऑन द वर्ज ऑफ इरेडिकेशन, एंड बहुत सारी डिजीज को हमने कंट्रोल कर लिया। कुछ साल पहले तक भारत में मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा से बहुत लोग मरते थे, आज उतने लोग नहीं मरते थैंकफुली। ऑल द क्रेडिट गोज नॉट टू द मैनेजमेंट बट टू द वैक्सीन। तो जब हम वैक्सीन देते हैं एक इंसान से दूसरे को, तो उसकी वजह, उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से जब एक बहुत सारी चीजें होती हैं जो एनवायरनमेंट में भी वो इम्यूनिटी आ जाती है। डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन राइट नाउ, इट्स कॉल्ड अ हर्ड और द इनडायरेक्ट इम्यूनिटी और a population immunity. So ये basically we are thinking and probably this will be the life saving thing which we do not know as of now whether there will be herd immunity for this virus. वायरस में क्या कर, वैक्सीन में क्या करते हैं, एक फॉरेन बॉडी जो कि एक इम्यूनोजेन होता है, इम्यूनोजेन मतलब जो कि एंटीबॉडी या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। तो वो आपको अगर इन्फेक्शन होता है तो नेचुरली आपका वायरस इम्यूनोजेन बन जाता है, आपकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स डेवलप होता है, जो कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी हो सकता है और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी हो सकता है, टी सेल, टी हेल्पर सेल्स या टी हेल्प यू कैन बी से इट और द T8 सेल। सो बाकी एंटीबॉडी चाहे वो IgG हो, M हो, A हो, D हो, E हो, इस तरीके की प्रोड्यूस होती हैं। बट जब हम वैक्सीन देते हैं तो एक पर्टिकुलर इम्यूनोजेन देते हैं, या तो खाली पूरा वायरस दे दिया, जैसे कि वायरस को मार दिया और उसके जो बाहर के जो उसके शेल्स होते हैं या कुछ वो जैसे कि कोवैक्सीन में है वो इम्यूनोजेन की तरह दे दिया, या तो कोविशील्ड में कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा स्पाइक प्रोटीन है, बस वो दे दिया, डिलीवर कर दिया, ताकि स्पाइक प्रोटीन ही के अगेंस्ट बेसिकली वायरस बाइंड होता है ताकि वायरस बाइंड ही ना कर पाए। सो वैक्सीन डिफरेंट तरीके से दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है कई सारी बीमारियों के लिए, किसी के लिए सबक्यूटेनियस, किसी के लिए इंट्राडर्मल, ओरल, नेजल स्प्रे। हम लोग अभी देख रहे हैं कि ज्यादातर वैक्सीन जो अवेलेबल हैं वो इंट्रामस्कुलर हैं, कुछ दिनों में शायद नेजल स्प्रे वैक्सीन आ जाएंगी, शायद जब ये आ जाएंगी तो दीज विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द नेजल म्यूकोसा। नेजल इम्यूनिटी इज द बेस्ट इम्यूनिटी। उसके बाद what we think and as what we as expert think that we will be able to win the battle against this corona. This will be the game changer, intranasal spray application. So स्टडी जब भी होती है वैक्सीन के लिए तो कई लोगों के दिमाग में आता है कैसे इसको क्लियरेंस मिलता है। एक होती है प्री क्लिनिकल स्टडीज जो कि एनिमल स्टडी होती है सेफ्टी एफिकेसी के लिए, फिर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल होता है जो कि कितना डोज देना है, क्या इम्यून प्रोड्यूस हो रहा है, सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो रहा है, सेफ्टी कितनी है, ये थोड़े हेल्दी वॉलंटियर्स में लिया जाता है 100 से के राउंड अबाउट। फेज 2 तब होता है जब फेज 1 को अप्रूवल मिल जाता है, फिर 100 से 1000 लोगों के ऊपर ये सेम स्टडी करी जाती है। फेज 3 होता है जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल को दिया जाता है एंड सेफ्टी उसकी डॉक्यूमेंटेड हमारे पास होती है। सो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें वैक्सीन एफिकेसी देखी जाती है एंड उसके बाद जब आप देखने लगते हैं उसके बाद भी आपका ट्रायल चलता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेज 4 या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। ये ऑनगोइंग है, अभी भी ये चल रहा है हमारी कंट्री में फॉर बोथ द वैक्सीन। सो वैक्सीन के लिए आपको अगर देखा जाए तो प्री क्लिनिकल स्टडी में 2 साल लग जाते हैं, फेज 1 स्टडी में 1 साल लगता है, फेज 2 स्टडी में 2 साल लग जाते हैं, फेज 3 में कभी कभी 3, 4, 5 साल लग जाते हैं,
एंड एक वैक्सीन को फेज 4 में पहुंचने में 10 साल लगता है। बट क्योंकि ये पैंडेमिक था, एक्सेलरेटेड वैक्सीन डेवलपमेंट की जरूरत थी, तो सारे जो अप्रूवल्स थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, चाहे ट्रायल हो, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव थे कि कोई भी वैक्सीन का कोई भी ट्रायल में कहीं भी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी ऑब्जेक्शंस ना लगाए और तुरंत उसको अप्रूवल्स दे। सो हमें 6 महीने में वैक्सीन मिलना तो मतलब बहुत ही वी वर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इट एज अ एक्सपर्ट, बिकॉज हमने कभी देखा नहीं था, बट आ गई वैक्सीन बिकॉज देयर वाज अ, यू कैन से बहुत जल्दी जल्दी अप्रूवल्स मिलते गए। इम्यूनोलॉजिकल बेसिस मैं नहीं जाऊंगा चाहूंगी, अगर कोई इंडिविजुअल जानना चाहता है तो दे कैन कॉल मी अप एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। दो तरह की इम्यूनिटी हमारे को इस वायरस के बाद मिलती है, एक में होता है एंटीबॉडी, दूसरा एंटीबॉडी बनते हैं। एक और इम्यूनिटी हम लोगों को मिलती है जो कि एंटीबॉडी से रिलेटेड नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये हमारे को CD4 और CD8 टी सेल्स के रूप में मिलती है, जो कि बहुत इफेक्टिव होती है। दिस इज बेसिकली द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी एंड ये ही बेसिकली हमें हेल्प भी करती है। प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी, दिस आई एम स्किपिंग। ओके, वैक्सीन में क्या क्या होता है? वैक्सीन में एक एंटीजन होता है, एक स्टेबलाइजर होता है, एक एडजुवेंट होता है जिसकी वजह से ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आता है, जैसे कि एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स डाली जाती हैं ताकि कोई बैक्टीरिया ग्रो ना कर जाए जब वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल होता है, और प्रिजर्वेटिव ताकि वो वैक्सीन सड़े ना, ताकि जैसे कि थाइमरसोल, फॉर्मल्डिहाइड एंड सो वैक्सीन, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन एंड यू कैन सी सब वैक्सीन के कंपोनेंट यूजुअली यही होते हैं। अभी हमारे कंट्री में अगर मैं आपको बताना चाहूँ आंकड़ों के हिसाब से, तो टोटल डोज हैव बीन गिवन टू मोर देन 20 करोड़ ऑफ पीपल एंड कितने फुली वैक्सीनेटेड हैं, इट कम्स टू 4.26 करोड़। सो ये कंप्लीट कर लिया है इन्होंने फुल वैक्सीनेशन एंड परसेंट फुली वैक्सीनेटेड आर नियरली 5.6% ऑफ द आवर पॉपुलेशन. So prioritization initially was given to the healthcare workers, frontline workers, and the people with certain, you can say, chronic debilitating illness and the comorbidities. But now, only one guidelines: everyone older than 18 years are being given vaccination. Whether you go for in the private sector, you can take. You can go. Preferably, you should go. You can go in the government sector, and you can take the vaccines. अभी इंडिया में 3 वैक्सीन्स हैव बीन अप्रूव्ड. आई विल टेल यू इन डिटेल. वैक्सीन्स यूजुअली हो सकता है एटेन्यूएटेड, मतलब एक जिंदा वायरस को थोड़ा कमजोर कर दिया गया है, सो वो होती है एटेन्यूएटेड लाइव वायरस वैक्सीन्स. ये हमारे यहाँ अभी तक तो कोई नहीं है. होल वायरस, जो वायरस को मार दिया गया, मरा हुआ या कि इनएक्टिवेटेड डेड वायरस वैक्सीन जो कि इंड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, वो है कोवैक्सीन. प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, वी कैन से दैट यस कोविशील्ड इज अ सब यूनिट जिसमें से प्रोटीन एक्सप्रेशन दिया जा रहा है एक वेक्टर के थ्रू. एक होती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, एक होती है पेप्टाइड वैक्सीन, एंड देयर आर लाइक रेप्लिकेटेड नॉन रेप्लिकेटिंग, जैसे कि एडिनो वायरस जो कि हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, उसके साथ एक यू कैन से सब यूनिट को अटैच करके एक्सप्रेस किया जा रहा है. और कुछ होती है डीएनए वैक्सीन. So Covaxin, Covishield के बीच में, if you want to see, everybody now knows that the Covaxin has been developed by the Bharat Biotech and the ICMR, and this has been developed by the Serum Institute of India in collaboration with the Oxford. One is inactivating, one is the non-replicating viral vaccine. Efficacy of both them are good, 80 to 90%, and are also effect has also. थोड़ा सा प्लीज धीमा करना. Sunishka, sorry for the interruption. So the efficacy, you can see the storage is also very easy. We do not need very, you can say, a high monitoring, -80 or -20 to maintain the vaccines. And 2 doses are given. Basically, अगर आपको you know पहले तो Covaxin and Covishield both were being given. एक वैक्सीन तो 0 डोज बोलते हैं, second was being given after 4 to 6 weeks. बट अभी कोविशील्ड जो है वो बेसिकली हम लोग दे रहे हैं 12 to 16 वीक के बाद. After the study from the Lancet came that the antibody तब आपकी ज्यादा अच्छी होती है. Now, अभी हमारे इंडिया में क्या क्या वैक्सीन अवेलेबल हैं? Now you can see कोवैक्सिन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक वी भी है, स्पुतनिक 5 भी हमारे पास अवेलेबल है. शायद स्पुतनिक हमारे यहाँ सेकेंड वीक ऑफ आई थिंक जून में गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टार्ट हो जाएगी. और उसके साथ साथ फाइजर की mRNA वैक्सीन जुलाई से अवेलेबल हो जाएगी.
So now you know the Covaxin by the Bharat Biotech and the ICMR approved is going on. It is a whole virion inactivated vaccine. Covishield, which has been made by the under the license of the AstraZeneca and Oxford, and the Serum Institute of India is being given. It is a replication deficient chimpanzee adenovector viral vaccine, and Sputnik is being manufactured by the Dr. Reddy's Laboratory Limited and in collaboration with the Russia. कुछ वैक्सीन रशिया से ही आएंगी, कुछ वैक्सीन डॉक्टर रेड्डी की लैबोरेटरी में बनेगी. दिस इज अ कंबाइंड वेक्टर वैक्सीन. आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट ओवर हियर. बाकी वैक्सीन इंडिया में ट्रायल्स चल रहे हैं एंड शायद बाय द ईयर एंड अवेलेबल हो जाए, जो कि जाइडस कैडिला बना रहा है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड बना रहा है, जिनोवा पुणे बना रही है, भारत बायोटेक एक और वैक्सीन बना रही है रेबीज के तौर पे ही. तो बहुत सारी वैक्सीन पे ट्रायल्स चल रहे हैं. सो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो मॉडर्ना, बायोएनटेक, साइनोवैक, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ लैबोरेटरी वायरसेस की वैक्सीन अवेलेबल हैं. मॉडर्ना के बारे में ही मैं ज़्यादा थोड़ा करूंगी. दिस इज अ mRNA वैक्सीन, अ न्यूली डेवलप्ड वैक्सीन. अभी तक इससे पहले हमारे पास mRNA वैक्सीन कोई भी नहीं थी. दिस वाज डेवलप्ड बाय द यूएस एंड इसका इंट्रामस्कुलर डोज इज गिवन 28 डेज अपार्ट. इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी रिपोर्ट हुए लाइक बेल्स पैल्सी. प्रॉब्लम ये है कि इसको -20 पे बहुत ही करना पड़ता है, क्योंकि mRNA जो होता है RNA बहुत इजीली डिसइंटीग्रेट कर जाता है. वुहान चाइना ने भी कुछ लैबोरेटरी ने बनाया. बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइनोफार्म है, इनकी भी वैक्सीन. यूजुअली ऑल द वैक्सीन्स आर बीइंग गिवन एट द ड्यूरेशन ऑफ 1 month. Gemellia Research Institute is also making one vaccine in Russia. Then you can see the Novavax, Janssen and Johnson Johnson की वैक्सीन पे भी रोक लग गई है. So a lot of our vaccines are being made. So I think in the pipeline we have more than 300 vaccines, which is which has opened a new chapter in the history of the vaccination, you can say. So many people are making viral vaccines and everybody is putting in their efforts so that this particular pandemic can be controlled, and we see minimum of mortality with the vaccination, using the mask and following the COVID protocols, as I've all mentioned. And with this, I will not go into the details of all these things. And with this, I come to the end of my particular discussion. Thank you so much.